Hello everyone. Now let's see the next event in your mitosis. Once again I am revising for short. Mitosis is the type of cell division in which one parental cell divides to produce two identical daughter cells. That daughter cells have such a genetic material, such a appearance, morphology which is exactly similar to each other. They are twins of each other and their daughters are exactly copy of their parental cell. We have seen how these cells, spatial cells, for example your body cells, somatic cells, your plants में vegetative cells, they undergo mitosis and they produce copies of them. Right? For that we have done the G1 phase, growth, then S phase, synthesis of DNA, and G2 phase, that is further growth, copying of your cell organelles, mitochondria, etc. And now your cell was ready for cell division. That larger cell which is having double amount of everything, cytoplasm, nuclear amount, everything was double in that cell. So that cell was now ready for cell division. So it will divide by two steps. The first step will be karyokinesis, that is your division of nucleus, and the second step will be cytokinesis, that is division of your cytoplasm. Nucleus have to divide means you have the nucleus, जो cell थी उसके अंदर this was the cell membrane and this is your nucleus. It was having your DNA in the form of chromatin material. So that and here is your centriole and nucleolus was present at the starting of your mitosis. So this will undergo condensation. चार changes यहाँ पे क्या होते हैं? The chromatin material undergoes condensation. Chromatin material, chromatin fibers, they undergo dehydration and condensation. दूसरा, that material leads to formation of thin chromatids known as monads in early stage. They undergo soon further coiling to form dyads. So ultimately monad से dyad बनेंगे, condensation और dehydration होगा. Monad और dyads दिखाई. Dyads कैसे रहते हैं? This is monad. यहाँ पे उसका सेंट्रोमियर रहेगा और ये दो आर्म्स रहेंगे. What is dyad? जिसके अंदर इस तरीके से अपने को यहाँ पे सेंट्रोमियर और ये जो दो क्रोमैटिड्स रहेंगे, डॉटर क्रोमैटिड्स अटैच एट सेंट्रोमियर, आपको ऐसा दिखेगा. So this is monad, this is dyad chromosome. Okay. ये होने के बाद दूसरा, your nuclear membrane and nucleolus undergo, nucleolus disappear, nucleolus they disappear. Along with that, certain cell organelles like your Golgi body, ER, they also undergo disappear. क्योंकि Golgi body, ER ये क्या रहते हैं? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जाली जैसे रहते हैं. तो आपके डीएनए को डिस्ट्रीब्यूशन में वो अटका सकते, रोक सकते, किसी प्रकार का हडल क्रिएट कर सकते, तो उनको भी गायब कर देने का. Golgi body and ER they also undergo disappear. Distinguish, they just disappear from the region. तीसरा चेंज होता है इसके अंदर, the centrioles they move towards pole. Centrioles move to poles and they start to form your spindle apparatus. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, this is called your प्रोफेज. स्पिंडल apparatus बनाना स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus. दिस वॉज लेट प्रोफेज और ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में, मतलब जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने देखे थे. नाउ व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फेज? सो अपने कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस पे, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एना और टीलोफेज. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फेज. तो आपके पास कुछ ऐसा सेल है जिसके अंदर यहाँ पे लास्ट स्टेज में आपका ऐसा तैयार हुआ था. देखो ये आपका एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल था, उनसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पिंडल apparatus बनना स्टार्ट हो गए थे. राइट. आपका जो डीएनए था वो ऐसे डायड के फॉर्म में यहाँ पे आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा. अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है, सो अपने को ऐसे 46 कॉपीज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स. आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल्स डिसअपियर हो गई. नाउ यू कैन सी दिस स्टेज, दिस इज द लेट प्रोफेज 1. लेट प्रोफेज 1. ओके, एट द एंड. Now what happens next? The chromosomes they come to central position of that cell. It is called equatorial position और equator पे आना शुरू होता है. What is equator? A line, hypothetical line at the center of earth, उसको equator बोलते हैं. वैसे ये सेल के सेंटर पे को इमेजिन करो. अगर वो ऐसी कॉलमनार सेल है तो उसका ये इक्वेटर हो जाएगा. अगर वो ऐसी सेल है तो ये उसका इक्वेटर हो जाएगा. सेल का जो कोई भी बीच का हिस्सा रहेगा जहां से वो सेल के दो टुकड़े हो सकते हैं, ऐसी जगह पे वो सब क्रोमोसोम्स आके इमेजिन करो खड़े हो जाए. सो कैसे? अब वो एक सर्कल, फुटबॉल जैसा इमेजिन करो पूरी सेल को. उसके अंदर यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक्स शेप का, यहाँ पे क्या, सबको 46 क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दो ऐसे.
3D में इमेजिन करो, मैं ड्रॉ 2D में करूंगा लेकिन आपको 3D में दिखाई देखना है उसको। सो कैसा अरेंज करने का, दिस इज योर सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो गया, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक इधर, एक इधर, समझ में आ रहा है? ये कैसे प्लेट जैसा इमेजिन करो, सर्कुलर पूरा एक प्लेट जैसा इमेजिन करो, इस तरीके से रखा है। हाउ मेनी 46 dyad chromosomes will be present at the equatorial plate. Okay, and your centrioles, they occupy your last position. Centrioles now occupy last position, that is your they be at the equator. दो कॉपीज रहते centriole के बने वाले s स्पेस की में, तो फिर वो कॉपीज, एक कॉपी उधर एक कॉपी इधर, and from their ends arise the microtubulin fibers. From their ends arise microtubulin fibers, and that fibers will be present here like this. Oh, fibers have at present. So this is called spindle fiber because they join to the chromosomes at the proteinous part known as kinetochore. आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, तो देखो क्रोमोसोम्स दे हैव two chromatids. This is one chromatid, this is chromatid number 2. They are attached at a point known as centromere, and around that centromere there are proteinous plate-like structures known as kinetochore. They are made up of proteinous plates, they are proteins. So जो आपका स्पिंडल फाइबर है, so ये जो माइक्रोट्यूबुलिन के फाइबर्स आ रहे हैं, so they attach here in presence of मैग्नीशियम 2+, या फिर आपका कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स itself is made up of tubulin protein, माइक्रोट्यूबुल में ट्यूबुलिन प्रोटीन ही रहता। सो ये तीनों चीजों से मिलके क्या होगा, ये धागे तैयार होंगे। These are called spindle fibers. क्या क्या लगता है स्पिंडल फाइबर बनने के लिए, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस और ट्यूबुलिन प्रोटीन। अंडरलाइन करके रखो, दिमाग में बिठा रखो। उसमें इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सबसे ज्यादा, और उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम, और फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन से तो खुद बने आ रहे हैं। सो इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये कम ज्यादा हुआ तो ठीक से वो फाइबर्स बनेंगे नहीं और आपका स्पिंडल एपरेटस खराब बनेगा। ओके, देन ये फाइबर्स यहाँ से ऐसे जाएंगे, इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से, लेकिन अटैच कहाँ पे होंगे? कुछ बच्चों को क्या लगता है, सर मैं एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो स्पिंडल एपरेटस देखो कैसा बनता। कुछ बच्चे क्या करते, सर इधर चिटका दिया, इधर चिटका, ये यहाँ पे एंड्स पे नहीं चिटकते कभी भी हो। दैट स्पिंडल फाइबर ऑलवेज अटैच टू दी काइनेटोकोर। यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये देखो, ये जो प्लेट है क्या, ये प्लेट को अटैच होते हैं, वो इधर से जाएंगे और ये प्लेट को अटैच होंगे, समझ रहा? दे विल ऑलवेज अटैच ऑन दी kinetochore. So spindle fiber attached to dash dash of chromosome. Dash dash मतलब what? Kinetochore of chromosome. They serve as the surface of attachment for spindle fibers. सेंट्रियोल पे अटैच नहीं होंगे, इधर अटैच नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, बीच में नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे, एक ही जगह जाकर अटैच होते, क्योंकि यहाँ से फिर इधर एक धागा अटैच होगा। अब इधर ड्रॉ करता देखो, एक अपन 2 ही क्रोमोसोम लेंगे, तुम बाकी क्रोमोसोम्स का अंडरस्टैंड कर लेना, ज्यादा जल्दी समझ में आती है वो चीज। तो ये एक क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे कितने अपने पास 46। तो मैं ये फाइबर को देखो ब्लू कलर से, यहाँ पे एक काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये तो यहाँ पे अटैच करो, 2 3, 1 2 3, समझा? नीचे वाले से जो निकलेंगे, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, 1 2 3, 1 2 3, समझ रहे कैसे अटैच करो? ओके, अब देखो यहाँ पे फाइबर्स बन रहे और ये काइनेटोकोर्स को अटैच है, ठीक है। लेकिन फाइबर सिर्फ एक प्रकार के नहीं रहते, ऐसे 3 प्रकार के रहते हैं। देखो मैं ड्रॉ कैसे करा, डायरेक्शन देखो, एक पूरे स्ट्रेट जाएंगे, ये पोल से लेके दूसरे पोल तक, पोल टू पोल, फाइबर नंबर 1, समझा? दूसरा पोल, these are 2 poles, okay, pole to chromosome, pole to chromosome, instead of that kinetochore बोलो डायरेक्टली, pole to kinetochore, okay। तीसरे from pole up to certain length, neither up to chromosome nor up to the another pole, they are called discontinuous fiber, and fourth one between chromosomes, यहां पे भी कुछ फाइबर्स बनते हैं, समझ रहा है? सो बिटवीन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, 4 प्रकार के फाइबर्स दिख रहे हैं।
First fiber is called pole to pole fiber. They are continuous fibers. First fibers, continuous fibers. Second, pole to kinetochore. Pole to kinetochore. They are called chromosomal fibers. These are important. जो ये सेंट्रियोल से यहाँ तक आए उनको क्या बोलने का? क्रोमोसोमल फाइबर्स. दे आर एक्चुअली क्रोमोसोमल फाइबर्स. Third one is discontinuous. As the name suggests, they are neither continuous between any of these. They end in between the cell. They are discontinuous fiber. And what about chromosome to chromosome? Between two chromosome देखो यहाँ पे बन रहा है क्या? chromosome to chromosome. This is called interchromosomal fiber. कौन से फाइबर बेटा? Interchromosome. Inter मतलब in between, chromosomal मतलब chromosomes. So the fibers from centriole to centriole, they are continuous. Centriole to chromosome, chromosomal fibers. Centriole to in between the length, discontinuous fibers. And chromosome to chromosome, in between chromosomes, they are called interchromosomal fibers. Okay, so these are the four types of fiber that can be seen here. And therefore, you can see a structure which is just like a shape called fusiform shape, or this is the shape of that structure. It is called spindle shape. What is spindle shape? That shape is having broad center पे broad हो गया, okay, and having tapering ends. So such shape is known as spindle shape. ये shape का नाम याद रखो, spindle shape. So you will get a spindle shaped structure here. Hence this apparatus, this complete state arrangement is known as spindle apparatus. क्या तैयार हुआ यहाँ पे? Spindle apparatus. What are the parts of spindle apparatus? So spindle apparatus consists of centrioles. Number 2, spindle fibers, and there are some small fibers present here, just like your discontinuous fibers. They are called astral rays. Astra मतलब star, astra मतलब astronomy, एस्ट्रो. सो एस्ट्रा मतलब स्टार. तो आपका जो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के आजू बाजू ऐसे बारीक बारीक फाइबर्स दिखाई देंगे, जैसे तारे से कुछ चमकता हुआ कैसे निकलते उसके रेस, तो उस तरीके से. तो इसके लिए इनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेस. एक्चुअली वो फाइबर्स के टुकड़े रहते वो ऐसे जुड़े वाले, और इधर से उनके कंटिन्यूअस फाइबर्स इधर से गायब रहते. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एस्ट्रल रेस एंड दे आर स्पेसिफिकली फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली. ये किसमें मिलते हैं? एनिमल्स में. व्हाई? बिकॉज ओनली एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स. Plant cells are without centrioles. Centrioles are absent in plant cells. समझ रहा है? तो astral rays are only found in animal cells. Hence, this mitosis is known as astral mitosis. Astral mitosis. Whereas in case of plants, centrioles are absent. So therefore, you cannot see the structure like this. But yes, there is arrangement like this. Plants में क्या होता? Centriole नहीं रहता. But yes, ऐसे यहाँ पे ये जुड़े वाले रहते एक दूसरे को फाइबर्स. ओके, एंड दैट इज नोन एज अनएस्ट्रल माइटोसिस. अनएस्ट्रल माइटोसिस. it occurs in plants, and astral mitosis occurs in animals. What is astral? These are the tubulins that are present around the centriole. Centrioles are only present in animal cells, hence it is called astral mitosis. But centrioles are absent in plant cells, hence it is called अनएस्ट्रल माइटोसिस. ध्यान में रखो, ये वर्ड्स यहाँ से रिलेटेड है. दे आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus. So spindle apparatus has centrioles, spindle fibers and astral rays. So they collectively form spindle apparatus. It consists of four types of fibers: continuous fibers, chromosomal fibers, discontinuous fibers and interchromosomal fibers. What happens next? The chromosomes are present at the center or the equatorial plate. Okay, that is known as metaphase plate. इक्विटोरियल प्लेट को क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट. एक प्लेट में रखे दिखते सबको एक जगह पे, एक प्लेन में रहते सेम. ओके, एंड द फाइबर्स अटैच एट द काइनेटोकोर. दिस इज योर डन मेटाफेज. One more important thing about metaphase. This is the most important phase to study. Metaphase is the important phase to study the morphology of chromosome. Note करके रखो. If you have to study the morphology of chromosomes, कौन सी? Morphology of chromosome. कैसे दिखते हैं chromosome? उनका shape size क्या है? वो study करना है. So you can directly stop a cell in metaphase. वो cell को कहाँ पे रोक देना पड़ेगा तुमको? Metaphase में रोक देना पड़ेगा. ओके, इसके लिए क्या करते हैं? अगर आपको मेटाफेज में सेल को स्टॉप करने का, उसके आगे उसकी डिवीजन रोकने की,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड अ केमिकल नोन एज माइटोटिक टॉक्सिन। आपको क्या डालना पड़ेगा, उसमें एक जहर डालना पड़ेगा जो माइटोसिस रोक देगा। माइटोटिक टॉक्सिन्स दे प्रिवेंट माइटोसिस, व्हिच इज दैट वन? फॉर एग्जांपल colchicine is most commonly used mitotic toxin. It is obtained from a monocot plant, Colchicum autumnale. Colchicum autumnale. So this is a monocot plant. इसमें से केमिकल मिलता कोल्चिसिन। अगर तुम सेल्स डिवाइड हो रहे और वो डिवाइड हो रहे हैं सेल्स में तुमने कोल्चिसिन डाल दिए तो ये माइटोसिस रोक देगा। लेकिन कहां पे रोकेगा? सिंपली इट विल प्रिवेंट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कोल्चिसिन? It prevents formation, it prevents assembly of microtubules, it prevents assembly of microtubules and formation of mitotic spindle, formation of mitotic spindle, ये स्पिंडल बनने नहीं देगा। अगर मैंने इस सेल को क्या किया, जो भी सेल से मैंने निकाला और उनको ये कोल्चिसिन का सॉल्यूशन बनाया रहता रेडीमेड, वो सॉल्यूशन कुछ अमाउंट में लिया और वो सेल्स को डिप कर दिया उसमें, ये सेल के अंदर जाएगा कोल्चिसिन और सीधा सीधा क्या करता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ रहे और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की असेंबली हो रही, जुड़ के जो फाइबर्स बन रहे, ये फाइबर ही बनने नहीं देते। एक बार ये फाइबर्स बनेंगे नहीं तो तुम्हारा कौन सा apparatus नहीं बनेगा? स्पिंडल apparatus is not formed and therefore chromosomes will come to central plate। क्रोमोसोम्स तो बीच में आ जाएंगे लेकिन उनको आगे की डिवीजन नहीं होगी, स्पिंडल apparatus का आगे का जो काम है वो नहीं होगा, क्रोमोसोम वहीं पे अटक डाले रहेंगे और फिर ये क्रोमोसोम्स ऐसे पड़ाले रहेंगे यहाँ पे एंड देन यू कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान में रखो, मेटाफेज से रिलेटेड कुछ बातें एडिशनल बिट्स है, आपको ये लिखने का नहीं है लेकिन आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आपको मॉर्फोलॉजी स्टडी करने की तो कहाँ पे स्टडी करने का? मेटाफेज। उसके लिए कैसा करने का, क्या यूज करने का? माइटोटिक टॉक्सिन, फॉर एग्जांपल कोल्चिसिन। ओके, कोल्चिसिन कहाँ से मिलता? ऑटोमनेल बोल के एक प्लांट है, कोल्चिकम ऑटोमनेल। इट इज अ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। What is the action of that colchicine? It prevents the formation, assembly of microtubules, tubulin proteins and formation of spindle apparatus and hence the chromosomes they come to equatorial plate but they do not go further division. You can then observe them under microscope. समझ में आया? So what are the two events? दो events होते हैं यहाँ पे मेजर माइटोसिस में, मेटाफेज में। chromosomes come to the equatorial plate and second formation of complete spindle fiber and attachment of spindle fibers to the kinetochores. Okay, इतना रेडी हो गया। नाउ द नेक्स्ट फेज, ओके, नेक्स्ट फेज इज योर एनाफेज। अब इसके आगे बढ़ते हैं एक फेज और। तो अपने पास अब ऐसा ये है सेल और उसको स्पिंडल फाइबर्स अटैच, ठीक है। कहाँ पे अटैच है स्पिंडल फाइबर्स? अपन एनिमल सेल लिया है ना, तो अपने पास तो सेंट्रियोल रहेगा, एनिमल सेल लिया है ना अपन ने, तो सेंट्रियोल विल बी प्रेजेंट हियर। ओके, अब नेक्स्ट फेज में क्या करेगा? सिंपली एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग एंड पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स, ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम्स डायट्स एंड पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स। ब्रेकिंग एंड पुलिंग इतने याद रखो, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज, whereas प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज कैसा रहता? लॉन्गेस्ट। क्यों लॉन्गेस्ट रहेगा? क्योंकि अपने को डीएनए को कॉइल करके रखने का, लपेट के रखने का, लपेटते बैठने को टाइम लगेगा ना, गुंडल करने, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग करने की, वही प्रॉपर मैनर में। तो प्रोफेज इज देयरफॉर लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फोर फेजेस, whereas एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज because it simply does two things: breaking of chromosomes at centromere। आगे देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये जो पॉइंट है, the two chromatids are attached at a point known as centromere, so just break it like this, break it at like this। ओके, तो अपने पास 46 क्रोमोसोम्स थे, बराबर है, स्टार्टिंग में 46 थे ना ये पूरे। 2n इज इक्वल टू कितना रहता? 46। तो ब्रेकिंग करो, क्या हो जाएगा? फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएंगे। ऐसे हर एक क्रोमोसोम टूट के एक एक क्रोमोसोम के कितने टुकड़े तैयार हो जाएंगे? हर क्रोमोसोम के दो पीसेस हो जाएंगे, 2 पीसेस ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 2, दैट विल बी 92। अपने पास अब कितने क्रोमैटिड्स तैयार हो जाएंगे? 92। दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम्स। बच्चे हो जाएंगे, क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो गए ना, तो दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये जो टुकड़े हो गए, सो दिस पीसेस दे विल नाउ मूव, दे आर पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स
टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इनको इधर खींचो और इनको नीचे खींचो। तो जब मैं इसको बीच में से पकड़ के खींचूंगा, यहाँ पे पकड़ा है ना, इसको यहाँ पे पकड़ा है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, इसको पुलिंग करूंगा मैं तो ये नीचे आने लगेगा। ओके, इमेजिन दैट दिस इज अ क्रोमैटिड विच इज नाउ फॉर्म्ड हियर। ये एक क्रोमैटिड इमेजिन करो, कोई भी एक। सो इट इज लाइक दिस। ओके, इसको अपन ऊपर खींचने का, तो ये यहाँ पे उसको पकड़े वाला है अपन ने, यहाँ से ऐसे धागा बंधा है, वो जो क्रोमैटिन फाइबर है वो यहाँ पे अटैच। तो जब मैं उसको ऊपर पुल करूंगा तो वो ऐसा जाएंगे, देखो। सो वो थोड़े ये नीचे लटक जाएंगे इसके दोनों एंड्स, और ये ऐसा पुल हो जाएंगे। सो कौन सा शेप दिख रहा है, इन्वर्टेड वी शेप दिख रहा है। और नीचे वाले को जब खींचेंगे तुम ऐसा पकड़ के, तो वो नीचे वाले ऐसा जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा फिर यहाँ पे, यू कैन सी द क्रोमैटिड्स इन अर्ली फेज में क्या होगा, ये ब्रेकिंग होगी अर्ली एनाफेज में, और इसको लेट में देखेंगे। सो क्रोमोसोम्स विल बी सीन मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। chromosomes can be seen moving towards respective poles. Okay, this is anaphase done. What we are done, breaking of centromere and pooling of daughter chromatids. Breaking of centromere which results in formation of two daughter chromosomes and their pooling towards respective pole. अब इसमें दिमाग लगाने का, क्या दिमाग लगाना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं एनाफेज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, कितने रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 रहेंगे क्या। अपन ने काट के दो दो टुकड़े कर दिए ना, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड फॉर अ व्हाइल इन एनाफेज। सो देयरफॉर वी विल हैव 46 chromosomes in this single cell. 46 number of chromosome gets doubled in this cell. Okay, this is therefore having double chromosomes than the starting में 46 थे, एनाफेज में डबल हो गए। पहली चीज याद रहेंगी, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड फॉर अ व्हाइल इन माइटोसिस इन एनाफेज। ओके, दूसरी चीज, द लेंथ ऑफ विच फाइबर इंक्रीजेस एंड लेंथ ऑफ विच फाइबर डिक्रीजेस। लेंथ ऑफ विच फाइबर इंक्रीजेस एंड विच फाइबर डिक्रीजेस। सी, कंटिन्यूअस फाइबर की लेंथ को कुछ असर होने वाला है क्या, वो तो कंटिन्यूअस है, वो नहीं जाती, क्योंकि इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस फाइबर दे होल्ड द सेंट्रियोल्स इन प्रॉपर पोजीशन, दे होल्ड द सेंट्रियोल्स इन प्रॉपर पोजीशन। सो कंटिन्यूअस फाइबर की लेंथ बदलेगी नहीं, बट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, दिस इज क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर एंड क्रोमोसोमल फाइबर, इनकी लेंथ क्या हुई, पहले इतनी सारी थी, अब कम हो गई, क्योंकि हम उसको पकड़ के खींच रहे ना। सो द लेंथ ऑफ chromosomal fiber will decrease, length of chromosomal fiber will decrease, continuous fiber will remain same, ये सेम रहेगी, continuous की लेंथ सेम रहेगी। What about interchromosomal fibers? Interchromosomal, दिमाग लगाओ, the length of interchromosomal fibers, ये देखो पहले इतने छोटे छोटे थे, अब क्या हो गए, so length of interchromosomal fibers increases। लेंथ ऑफ इंटर, जैसे जैसे क्रोमोसोम दूर जाएंगे तो उनके बीच के जो फाइबर्स है, सो उनकी लेंथ बढ़ते जाएंगी। क्रोमोसोमल फाइबर की लेंथ कम, इंटर क्रोमोसोमल की ज्यादा, और कंटिन्यूअस की सेम। डिसकंटिन्यूअस भी यही पड़े रहेंगे, दे आर आल्सो नॉट अफेक्टेड, दे आर आल्सो नॉट अफेक्टेड। समझ में आया? सो व्हाट इज एनाफेज? सिंपली देयर इज ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स, increase in length of interchromosomal fibers but decrease in length of chromosomal fibers. Okay, in this stage you can see the shapes of chromosomes that we have seen in cell chapter. अपन shapes देख सकते हैं। shapes क्या रहते हैं, चार shape रहते हैं क्रोमोसोम के। either chromosome may have V shape or it may have L shape or it may have J shape or it may have telocentric chromosome without a short arm, the centromere at the end. So this is metacentric, submetacentric, acrocentric और telocentric. So when you have to study these shapes, तो जब ये तुम्हें खींचेंगे तो देखो V दिख रहा, कोई अगर L शेप वाला है तो वो ऐसा दिखाई देगा आपको L शेप, कोई J शेप वाला है तो ये J शेप, ये सारे शेप्स मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया था, वही चीज है। कोई टीलोसेंट्रिक है तो वो बेचारा ऐसा डायरेक्ट दिखाई देगा तुम्हारे को, उसको पकड़ के डायरेक्ट खींचने का सेंट्रोमियर के पास से। सो इस तरीके वी, एल, जे और आई शेप, रॉड शेप, ऑल दिस शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी सीन इन एनाफेज व्हाइल यू आर पुलिंग देम टुवर्ड्स पोल्स। अगर स्ट्रक्चर स्टडी करने का तो मेटाफेज क्रोमोसोम का, और अगर उनके शेप स्टडी करने के तो एनाफेज।
समझ रहे दोनों क्वेश्चंस कैसे डिफरेंट है? ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल्ड ड्यूरिंग दिस एनाफेज and at the end you will get the set of one set of chromosome 46 chromosomes at this end and 46 chromosomes at upper end, 46 chromosomes at this end and 46 chromosomes at upper end. Okay, so this is how you are having end of your anaphase, and last phase is your telophase. As soon as the chromosomes start to move here, here and here, so what happens when chromosomes reach respective pole? So एनाफेज सून इनिशिएट्स द क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, उसने तो खींच के लेके आया आपके क्रोमोसोम्स को, राइट? द क्रोमोसोम्स देन कम हियर, क्रोमोसोम्स कैन बी सीन हियर, they undergo exact opposite of prophase, they undergo all the things exact opposite to that of प्रोफेज. प्रोफेज में क्या करे थे अपने? कंडेंसेशन करे थे, डिहाइड्रेशन करे थे. अब उनका क्या करने का? हाइड्रेशन करने का. कॉइलिंग करे थे, अब अनकॉइलिंग करने का. सो दे अंडरगो अनकॉइलिंग, हाइड्रेशन, डीकंडेंसेशन. ओके, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स. Similar things will happen here. Nucleolus reappears. Chromosomes or DNA, chromatin material undergoes decondensation, hydration, reappearance of nucleolus, reappearance of mitochondria, Golgi body. All the things exact opposite to that of prophase. समझ रहा है? And a small notch-like structure. ये देखो notch. समझ रहे? नॉच वो फुग्गे में रहता है क्या? आपने बलून्स देखेंगे ना, वो फुग्गे बेचने वाले आते हैं अपने पास, तो उसके फुग्गे में बीच में ऐसा वो बांधते हैं उसको, तो नॉच रहता. सो जो इस तरीके एप्पल में जो रहता है ऐसा डीपनिंग जैसा रहता है ना, एप्पल का शेप, एप्पल में ऐसा डीपनिंग रहता ना. ओके, इधर से खाए वाला रहा तो वो एप्पल कंपनी का एप्पल, लेकिन अपना ऐसा एप्पल जो रहता, ओके, सो एप्पल कंपनी का नहीं, नॉर्मल एप्पल. तो ये जो डीपनिंग है इसको बोलते हैं नॉच. तो देखो इधर नॉच बन रहा कैसा, अंदर जा रहा है इधर से. फुटबॉल इमेजिन करो या फिर आपका बलून इमेजिन करो, बलून. ओके, बलून को क्या करना है? साइड से सब प्रेस करने का. तो प्रेस करे, अगर अपने हाथ से ऐसा भी प्रेस करे रिंग जैसा, तो वो ऐसा रहेगा, इधर अंदर जाएगा और नीचे से आके ऐसा रहेगा. सो आपको एक ऐसी सेल दिखाई देगी. सो द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर, डिप्रेशन, डीपनिंग लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन एट द एंड ऑफ टीलोफेज. क्योंकि अब इसको काट देने का, दो टुकड़े कर देने. समझ गए? Now at the end you can see two daughter nuclei at the two poles. Two daughter मतलब बच्चे, nuclei, दो न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस, means you have done the division of nucleus. So thus at the end you can see two daughter nuclei at two poles and a deep notch starts to develop from the end. So this is completion of your telophase. So what happens in telophase? The chromosomes ultimately come to the opposite poles. Okay, spindle fibers disappear. What happens with nuclear membrane and nucleolus? They reappear. And what happens with chromatin material? It undergoes decondensation, hydration, uncoiling, and the fibers, chromosome fibers, chromatin fibers are seen at the end of telophase. A deep notch from both the ends start to appear in animals. This is your telophase. Okay, so at the end, now this last part, समझ में आया? 4 पॉइंट्स क्या है इसके? ओके, जस्ट आपको जो स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी में दिया है रीड कर लो. बातें कैसे याद रखने की? इट इज एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस में जो प्रोफेज में करे उसका उल्टा करना. क्रोमोसोम को वहां कंडेंस करे थे, यहाँ पे डीकंडेंस करने. वहां कॉइल करे थे, यहाँ अनकॉइल करने. वहां पे टैंगल करे थे, यहाँ पे वहां पे अनटैंगल करे थे, यहाँ पे टैंगल कर दे. टैंगल मतलब गुतला कर देने का. वहां पे अनटैंगल करे थे, गुतला खोल दिए थे ना अपन ने, यहाँ पे गुंता उसका वापस करके रख देने. वहां पे न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया था प्रोफेज में, इसमें रीअपियर कर दे. वहां पे स्पिंडल अपैरेटस बना रहे थे, यहाँ पे उसको डिसअपियर कर देते. समझ गया? एंड एट द एंड वहां अपने को 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे और एक नॉच तैयार होगा. अब एनिमल सेल में अगली स्टेप है, लास्ट स्टेप इन योर mitosis is cytokinesis, is the division of kinesis मतलब division of cytoplasm. This notch deepens and this notch or furrow, इसको furrow बोलते हैं, FURROW. in case of animals, मैं animal cell की बात कर रहा हूँ. so this notch
deepens, and ultimately the two plasma membranes join, they cut and join, and what happens? A complete daughter cell is produced on downside and a one on upper side. So development of notch or furrow happens in animal cells. But what about plant cells? So in case of plant cells, we have a plant cell for example, and it is externally covered by cell wall. फर्क क्या है देखो, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल्स में, तो अपने को एक ऐसा डीपनिंग बना सकते तुम इजीली, लेकिन प्लांट्स में एक सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर रहता विच इज रिजिड, जिसकी वजह से तुम उसको तोड़ ऐसा दबा नहीं सकते, इट बिकम्स रिजिड स्ट्रक्चर, उसको तुम प्रेस नहीं कर सकते, नॉन इलास्टिक रहता, तो तुमको इसके बीच में से ऐसा नॉच वगैरह इधर से तोड़ना नहीं आएगा तुमको, राइट? तो इसके लिए क्या होता, सम स्पिंडल फाइबर्स रिमेन हियर, स्पिंडल फाइबर्स रिमेन हियर ओनली एट दी सेंटर, इधर एक न्यूक्लियस तैयार हो गया, इधर एक न्यूक्लियस तैयार हो गया, उसका अनकॉइलिंग हो गया डीएनए का, सेम वो जो डायग्राम है मैं थोड़ी सी हलचल करके बता रहा हूं आपको बस, ओके? जान दो, वर्टिकली देखते बाद में बोलेंगे क्या सिखाया मास्टर ने. दिस इज योर सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट इज सेल वॉल, this is cell membrane or plasma membrane. Here one nuclei is formed like this with central is absent, here another nuclei and this nucleolus and DNA. What I am telling you now, how the cytokinesis occurs in plant cell. Plants में cytokinesis कैसे होता है? Last part. So some spindle fibers remain here only, they do not disorganize, okay, and some small vesicles from your cell Golgi apparatus, small vesicles here from your Golgi apparatus, first of all they join at the center, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल ज्वाइन होते और एक बड़ा बलून जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. गोल्गी apparatus अपना तुमको मालूम है, सिस फेस ट्रांसफेस उसको रहता है, सिस फेस ट्रांसफेस, तो इसमें से वेसिकल्स निकलते छोटे छोटे, इधर से भी वेसिकल्स निकलेंगे और वो लड्डू भरते जाएंगे इसके अंदर, एंड इट बिकम्स अ बिगर वन एंड इट बिकम्स फ्लैट, it becomes flat and it develops towards the periphery. इधर एक ग्रोथ होंगी उसकी और इधर इसकी ग्रोथ होंगी, समझ रहा है? सो दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर 3D में इमेजिन करो, एक इसको बॉक्स इमेजिन करो, सेल को इमेजिन करो इस तरीके का बॉक्स पूरा एक, ओके? बॉक्स के बीच में से एक पतली सी प्लेट जैसा एक रेक्टेंगुलर प्लेट तैयार होंगी, वो रेक्टेंगुलर प्लेट चारों तरफ बढ़ते जाएंगी, बट इट स्टार्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम सेंटर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स पेरिफेरी, वो ऐसा फैलते जाएंगे सेंटर से पेरिफेरी. वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं? गोल्गी बॉडी से, ओके? दीज स्मॉल फ्रैगमेंट्स आर नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट्स, फ्रैग्मोप्लास्ट्स. These are the fragments of spindle apparatus, spindle fibers with the vesicles from Golgi body, vesicles from Golgi body, okay, and they join to form a structure, and this structure is known as cell plate. This structure is known as cell plate, which starts to form from center and moves towards periphery. तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? सेंट्रीपेटल क्या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपेटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर एंड फॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेंटर हो रहा है, इधर ये सेंटर से इधर फैल रही ना, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मेशन और सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस. और फिर अल्टीमेटली वो प्लेट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ पे टूट जाएंगी, इधर जाके ज्वाइन हो जाएंगी, इधर जाके, एंड यू विल गेट 2 cells and the cell plate will remain here only. It will further get deposited with pectin and it will become your middle lamella. Cell plate बाद में वहां पे से disappear नहीं होती, it gets deposited with pectin, calcium pectate, and it becomes your middle lamella. So what are the steps in cytokinesis in plant and animal cells? पहले plant देख लो एक बार. In plants, the cytokinesis occurs in centrifugal pattern. It occurs in centrifugal pattern. Point number 2, it starts from the center where some spindle fibers along with the vesicles from Golgi body, they join to form small fragments known as fragmoplast. Fragments word यार fragmoplast, जुड़ते जाते हो plast, okay? That fragments enlarge and they move towards periphery, forming a plate-like structure known as cell plate. This cell plate ultimately joined to the cell wall, forming a new plasma membrane for both the cells, and later on it gets divided, it gets filled up, deposited with pectin, and it acts as middle lamella of that cells. मतलब cell plate is the precursor of middle lamella.
सेल प्लेट इज द प्रिकर्सर, वो पहले सेल प्लेट रहता, बाद में जाके मिडल लैमिना, पूर्वज हो गया सेल प्लेट, ओके, फिर बाद में जाके मिडल लैमिना। एंड लाइक दिस यू गेट अ divided cell with 2 daughter cells in plants. What about in animal cells? In animal cells there is no formation of such cell plate, formation does not occur, okay. So therefore how does it occur? It starts with the formation of furrow, and that furrow forms at the periphery. फरो कहाँ पे बना था? पेरीफेरी पे तैयार हुआ था, मतलब पेरीफेरी से अपन इधर आते, पेरीफेरी से किधर आ रहे? सेंटर की तरफ, एंड इट जॉइंस अल्टीमेटली एट सेंटर। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल? दिस इज सेंट्रीपेटल, मूविंग टुवर्ड सेंटर, फिर सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। सो देखो ना, इसे इधर जा रहा सेंट्रीफ्यूगल और इधर आ रहे सेंट्रीपेटल फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, okay, and hence the furrow deepens and joins to form the 2 daughter animal cells. So this is how your cytokinesis is completed. At the end you will have a cell, this cell with 46 chromosomes here, 46 chromosomes here, anaphase में अपन इनको काट के डबल कर लेते, and like this is similar to your parent because it was also having 46 chromosomes, right? So इस तरीके से तुम्हारा माइटोसिस यहाँ पे फिनिश होता, ओके, एंड दिस इज व्हाट अबाउट ऑल अबाउट योर माइटोसिस डिवीजन पूरी हो गई। यहाँ पे अपन इसका जो आप एक बार रिवाइज करो, सब एनसीईआरटी में देखो, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में देखो, जो डायग्राम्स वगैरह नोट्स में देखो, रिवाइज करो, पॉइंट वाइज देख लो, स्टोरी बनाओ एक, और फिर शॉर्ट में उसकी जो स्टोरी है वो लिख के उसका मुझे मैसेज करो, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क टू राइट डाउन इन शॉर्ट, पॉइंट वाइज लिखने का। प्रोफेस डैश कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, disappearance of nucleolus, nuclear membrane, centriole start to form your spindle fiber, spindle apparatus. Metaphase, chromosomes at equatorial plate. Number 2, spindle fiber formation is completed, okay. Anaphase, breaking of centromeres and pulling of daughter chromosomes towards poles. You can study the shapes of chromosome, you can study the morphology in metaphase. And anaphase, the daughter nuclei at the opposite poles, spindle fiber completely disappears, reappearance of nuclear membrane, nucleolus, okay, and chromosomes undergo decoiling, uncoiling and decondensation. Lastly, cytokinesis in plant cell, cytokinesis in animal cell. आपको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में मैंने नोट्स में दिया हुआ है, केयरफुली रीड आउट इट वन। आपको एमसीक्यू में पूछते हैं विच इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस किस में दिखता? प्लांट्स में, बिकॉज द सेल प्लेट मूव टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड द सेल्स, 2 cells are formed. Centripetal in animal cells because furrow develops towards the center of cell and 2 daughter cells are formed. So this is all about your mitosis. इसका जो significance है और इसके बारे में कुछ additional points we will study it in our next lecture.